अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बेटा आप सबको पता है वी आर डिस्कसिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने डिस्कस किया बेटा गैस लॉज। पहला गैस लॉ हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ, आपको याद है बेटा। दूसरा गैस लॉ हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ। तीसरा गैस लॉ हमने पढ़ा बेटा गे-लुसाक्स लॉ। नाउ आज हम गे-लुसाक्स लॉ जो है बेटा आपका गे-लुसाक्स लॉ की पढ़ेंगे बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमने तो गे-लुसाक्स लॉ कंप्लीट किया है अगर आपको याद है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आज बहुत दिनों के बाद क्लास दी and you know the problem. Now we have discussed the statement of Gay-Lussac's law. Today we will discuss graphical representation of Gay-Lussac's law. Very important. Let's revise Gay-Lussac's law. You know that according to Gay-Lussac's law, pressure of a gas is directly proportional to temperature when number of moles of gas and volume आपका जो है बेटा when number of moles and volume is constant. This is your Gay-Lussac's law. Pressure of a fixed amount of gas is directly proportional to temperature at constant volume, and we know that this constant volume is known as isochoric condition. Now look here. Now we can remove this proportionality constant. We can write P is equal to KT. This K is known as Gay-Lussac's constant. This K is known as Gay-Lussac's constant, or simply you can call it as proportionality constant. Clear? This is the basic equation for Gay-Lussac's law. Again we can write, आपको मैंने बताया बेटा, again we can write initially if we have pressure P1 and temperature T1. सही बात है। यहां पर हम लिख सकते हैं बेटा P by T is equal to K। लिख सकते हैं ना बेटा, रेशियो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो मैंने आपको समझाया है, अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया, मैं रिवाइज कर रहा हूं। अगेन वी कैन राइट इनिशियली if we have pressure P1 and our temperature is T1, so we can write P के बदले हम लिख सकते हैं बेटा P1 divided by T1 that is equal to K. Is this clear? Very good. Finally when we have increased the temperature, so finally we can write if our temperature is T2 then pressure can be P2, because you know that when temperature is increased pressure also increases, when temperature is decreased pressure also decreases. So we can write at T2 we have pressure P2, so again we can write P2 by T2 that is equal to K. So similarly we can write, simply we can write if P1 by T1 is equal to K and if P2 by T2 is equal to K, then we can write P1 by T1, shabash. Then we can write P1 by T1 is equal to P2 by T2. This is the equation which is used in numericals. ये तो मैंने आपको पहले दिखाया है, मैं रिवाइज कर रहा हूं। सारे बच्चों ये तो मैंने आपको दिखाया है, P1 by T1 that is equal to P2 divided by T2, or we can write P1 by T2 that is equal to T1 by T2. But this equation is valid when your volume is constant and when you have fixed amount of gas. ये तो मैंने थोड़ा सा Gay-Lussac's law का आपको दिया बेटा ओवरव्यू। ये तो मैंने Gay-Lussac's law का बेटा आपको थोड़ा किया रिवाइज। नाउ आज का हमारा टॉपिक है बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Gay-Lussac's लॉ। प्यारे बच्चों अगर आपको याद है एक लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था हाउ टू ड्रा द कर्व्स। अरे सिखाया था ना बेटा,
एक लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था हाउ टू ड्रा द कर्व्स। मुझे उम्मीद है बेटा अच्छी तरह से आपको इस सारे ग्राफ्स आएंगे बेटा। नाउ लगाइए हेडिंग आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गै-लुसाक्स लॉ। बेटा अगर आपको याद है गै-लुसाक्स लॉ को मैंने आपको समझाया था इन द फॉर्म ऑफ लॉग भी समझाया था, अगर आपको याद है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ लॉग सिंस अकॉर्डिंग टू गै-लुसाक्स लॉ सिंस P इज इक्वल टू KT। अरे याद है ना फिर लॉग लगाया था, देन वी कैन राइट लॉग P इज इक्वल टू लॉग KT। अरे समझाया था बेटा, देन वी कैन राइट log P is equal to, this is log M into N, we can write log K plus log T. Is that clear? We can write log P is equal to log T plus log K. This is the equation y is equal to mx plus c. अगर आपको याद है बेटा इस पे हमने ग्राफ भी प्लॉट किया था। क्लियर, शाबाश, इसको रिवाइज करना, पिछला वीडियो देखना। नाउ हमारा आज का टॉपिक है बेटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गै-लुसाक्स लॉ। आज जो भी मैं ग्राफ्स दिखाऊं, हो सकता है इसमें से कोई ग्राफ मैंने आपको दिखाया होगा वो रिवाइज होगा। यू राइट डाउन ग्राफिकल, शाबाश, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गै-लुसाक्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गै-लुसाक्स लॉ। प्यारे बच्चों आपको मैंने पहले सिखाया है, जब भी आपको कोई ग्राफ बनाना होगा, किसी लॉ का कोई भी ग्राफ बनाना होगा, यू हैव टू रिमेंबर द बेसिक इक्वेशन। हमारे पास अगर आपको याद है बेटा, हमारे पास गै-लुसाक्स लॉ में जो बेसिक इक्वेशन है दैट इज P इज इक्वल टू KT और वी कैन राइट P बाई T इज इक्वल टू K। ये हमारे पास बेटा बेसिक इक्वेशन है। गै-लुसाक्स लॉ की हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन है। नाउ वी विल प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ नंबर 1, पहला ग्राफ, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, दिस इज P and this is what T. Clear, shabash. This is your P and this is your T. Here we have 0. Clear? Now look, यहां देखिए बेटा, बेसिक इक्वेशन की तरफ देखिए आप, बेसिक इक्वेशन की तरफ देखिए बेटा। You have to plot the graph between P and T. So हमारी बेसिक इक्वेशन क्या है? P is equal to KT. P किस एक्सिस पे है? Y पे, तो P को मैं नाम रखूंगा y। T किस एक्सिस पे है बेटा? X पे, तो T को मैं रखूंगा x। X से पहले क्या होता है? वो M होता है बेटा। यहां आपका इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो इट इज क्लियर दैट वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन y एंड x। M आपका होता है बेटा स्लोप। तो मुझे बताइए बेटा, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बिकॉज y ओरिजिन, बिकॉज यहां आपका कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। और इस ग्राफ को हम कहेंगे बेटा आइसोकोर। वाई आइसोकोर? बिकॉज आपका जो वॉल्यूम है बेटा वो कांस्टेंट है। आपका वॉल्यूम क्या है बेटा? वो कांस्टेंट है। पहला करो, पहला ग्राफ P वर्सेस T। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बिकॉज यहां पे इंटरसेप्ट नहीं है बेटा, और यहां पर जो M है ये स्लोप है, और स्लोप ऑफ द ग्राफ किसके बराबर होता है? K के बराबर। जब हम आगे आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे बेटा, जब हम आगे आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे बेटा, आपको मैंने सिखाया है, पीछे सिखाया है, जब हम आगे आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे बेटा, वहां आप पढ़ेंगे PV, शाबाश, वहां पढ़ेंगे PV इज इक्वल टू nRT। याद रखना, बोलो ग्राफ किस किस के बीच प्लॉट करना है? P वर्सेस T। तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा P इज इक्वल टू NR बाई V, यहां T, दिस इज योर Y, दिस इज योर X, और ये NR बाई V क्या है? M। तो ये स्लोप है, मतलब स्लोप इज इक्वल टू K,
के इज इक्वल टू एन आर बाई वी। यह हम आगे पढ़ेंगे बेटा, फिलहाल सिंपली आप याद रखना यहां स्लोप किसके बराबर है, के के बराबर, और के किसके बराबर है, एन आर बाई वी। तो यहां पर पी और टी के बीच आपको ग्राफ प्लॉट करना है। पी यहां पर आपका y है, टी यहां पर आपका x है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन passing through the origin and slope of the graph is equal to k and k is equal to n r by v. Is that clear? पहला ग्राफ। ग्राफ नंबर 2, राइट डाउन ग्राफ नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ नंबर 2। मगर यहां पर आपको याद रखना है बेटा, जो आपका यहां पर टेम्परेचर है बेटा, इट मस्ट बी इन केल्विन। याद रखना बेटा, दिस टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। बेटा अगर आपको याद है जो ग्राफ्स आपने चार्ल्स लॉ में सीखे, बराबर वही ग्राफ्स यहां पर भी बनाने हैं। फर्क इतना है, चार्ल्स लॉ में यहां पे वॉल्यूम था और यहां गैल-लुसाक्स लॉ में यहां पे प्रेशर है, बस इतना फर्क है। चलो बेटा ग्राफ नंबर 2, नाउ वी विल प्लॉट ग्राफ नंबर 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल प्लॉट ग्राफ नंबर 2। आई होप ये सारे ग्राफ्स आपको अच्छी तरह से आएंगे बेटा। चलो बेटे, वी हैव ग्राफ नंबर 2। चलो बेटा, वी हैव ग्राफ P वर्सेस T, बट दिस T इज इन डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा बेटा, हमारा ग्राफ जो है दिस इज P वर्सेस T। टेम्परेचर इस वक्त क्या है बेटा, डिग्री सेल्सियस में। अरे बच्चों, इससे पहला वाला जो टेम्परेचर था वो केल्विन में था। चलो हम अपनी बेसिक इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी बेसिक इक्वेशन है P इज इक्वल टू के टी, मगर ये T यहां पर केल्विन में है, हमें चाहिए बेटा डिग्री में। आपको पता है केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, मैं लिखूंगा P इज इक्वल टू के, यहां पर मैं लिखूंगा बेटा T डिग्री प्लस 273। याद है ना बेटा, याद है ना, शाबाश। याद रखना, आपको मैंने सिखाया है पीछे बेटा, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस प्लस 273 सिखाया है। तो केल्विन, ये केल्विन में था, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में लिखने के लिए क्या करना है बेटा, अरे इसको प्लस करना है 273, टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273, सही है ना। चलो बेटा, इसको मैं मल्टीपल करूं, P इज इक्वल टू के इंटू टी, दैट इज के टी प्लस शाबाश 273 के। ये T मगर यहां पर है बेटा, ये T किस में है, T डिग्री सेल्सियस में है। देखो बेटा अब इक्वेशन क्या है, अरे सारा मैंने आपको सिखाया है। अब इक्वेशन क्या है बेटे, इक्वेशन है दिस इज योर, देखो बेटा ये P किस पे है, Y पे है, ये T किस पे है, X पे है, तो दिस इज Y, ये T क्या है, X, X से पहले क्या है M, प्लस यहां पर क्या है C। मतलब इस ग्राफ में इंटरसेप्ट है, और वो इंटरसेप्ट किसके बराबर है बेटा, 273 के। ये के केल्विन नहीं है यहां पर बेटा, ये गैल-लुसाक्स कांस्टेंट है, बस इतना याद रखना है। बोलो बेटा, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर दैट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। यहां पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप है बेटा। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। यहां पर स्लोप आपको सॉरी, यहां पर इंटरसेप्ट आपको दिखाना है। जब इंटरसेप्ट होगा, ग्राफ चूंकि थोड़ा स्टार्ट हेयर पेट, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा ऊपर स्टार्ट होगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस, और इस ऑरिजिन और यहां तक जो ये डिस्टेंस है इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। और आपका इंटरसेप्ट यहां पे किसके बराबर है बेटा, 273 के, है ना। देखिए उधर बेटा, शाबाश। और आपका स्लोप किसके बराबर है बेटा, स्लोप m होता है, स्लोप k के बराबर है। और आपको अभी मैंने कहा स्लोप k के बराबर है बेटा, तो वी कैन राइट k इज इक्वल टू एन आर बाई वी। अभी मैंने दिखाया, ये एक और ग्राफ है बेटा, दिस इज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन P वर्सेस T। एक और बात याद रखना बेटा,
आपको पता है स्लोप किसके बराबर होता है बेटा? स्लोप तो tan थीटा के भी बराबर होता है ना बेटे, होता है। सर यहां थीटा क्या है? यहां थीटा ऐसे बनाना है। आपको मैंने बोला है ये थीटा जो होता है, थीटा एंगल होता है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस। ये वाला आपका एंगल जो है बेटे थीटा है। क्लियर? ये हमारा था दूसरा ग्राफ, P वर्सेस T बट T डिग्री सेल्सियस। क्लियर? यहां पर हमने इंटरसेप्ट बनाया। कितना इंटरसेप्ट है बेटा? 273 किया। आपने समझा इसको बेटा? तो स्लोप किसके बराबर है? K के बराबर। और वी कैन राइट NR बाई V, और वी कैन से दैट स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा आपका यहां पर ये है। इज दैट क्लियर? क्लियर क्लियर, शाबाश शाबाश, अच्छी तरह से समझना। दूसरा ग्राफ था ये। चलो बेटा, दो ग्राफ्स हमने प्लॉट की। एक हमने प्लॉट किया प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन, दूसरा हमने प्लॉट किया बेटा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। नाउ वी हैव ग्राफ नंबर 3। नाउ वी हैव ग्राफ नंबर 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर्व्स बेटे, अक्सर एंट्रेंस में एक कर्व्स पूछे जाते हैं बेटा। नाउ वी हैव ग्राफ नंबर 3। देखो बेटा, अब मैं यहां पे बनाऊंगा y एक्सिस पे मैंने बनाया प्रेशर, यहां मैंने T नहीं लिया बेटा, यहां मैंने लिया 1/T। नाउ P और 1/T के बीच कैसा ग्राफ होगा आपको मैंने सिखाया। सबसे पहले आपको देखनी है बेटा बेसिक इक्वेशन। बेसिक इक्वेशन क्या है? P इज इक्वल टू KT। ये आपका y है बेटा, ये आपका x है, ये हमारा y है, मगर x किसके बराबर है? 1/T। यहां क्या है? T। तो मुझे चाहिए x शुड बी 1/T। सो वी कैन राइट वी कैन राइट P इज इक्वल टू, देखो बेटा ध्यान से सुनना, क्या मैं लिख सकता हूं K बाई 1/T? अरे लिख सकता हूं ना बेटा, वेरी गुड। अब P आपका क्या है? y है ना? अरे P तो y एक्सिस पे है ना बेटा, दैट इज इक्वल टू K बाई 1/T के बदले में क्या लिखूं बेटा? x लिखूं, है ना? तो बोलो बेटा y और x के बीच कौन सी रिलेशन है बेटा? इनवर्स रिलेशन है। तो ग्राफ आपका होगा P वर्सेस 1/T, ग्राफ आपका होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक दिस। और आप ऐसे भी बना सकते हो, मसला नहीं है बेटा। और ऐसे ग्राफ्स को हम कहते हैं आइसोकोर, क्योंकि आपको पता है इस वक्त हमारा जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है। इज दैट क्लियर? समझ आई ना बात बेटा? समझ आई बात? तो मैंने किसके भी ग्राफ प्लॉट किया? P वर्सेस 1/T सिखाया मैंने। बेसिक इक्वेशन की तरफ चले जाइएगा बेटा। P इज इक्वल टू KT। क्लियर? फिर मैंने लिखा P इज इक्वल टू K बाई 1/T। उसके बाद P के बदले y लिखा, y इज इक्वल टू K बाई x। तो y और x के बीच क्या रिलेशन है बेटा? इनवर्स रिलेशन है। और आपको अच्छी तरह से समझ आएगा P और 1/T के बीच इनवर्स रिलेशन है। एंड ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक दिस। ये हमारा हो गया थर्ड वाला ग्राफ। नाउ वी हैव ग्राफ नंबर 5, ग्राफ नंबर 4। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव ग्राफ नंबर 4। राइट डाउन ग्राफ नंबर 4। देखो बेटा, यहां पर मैं लिखूंगा P/T वर्सेस T। ध्यान से सुनना, P/T वर्सेस T। देखो बेटा, हमारी बेसिक इक्वेशन क्या है? बेसिक इक्वेशन है P इज इक्वल टू KT, है ना? ग्राफ किसके बीच प्लॉट करना है? P/T इज इक्वल टू K। ग्राफ प्लॉट करना है P/T वर्सेस K। तो ये P/T हमारा क्या है बेटा? Y है, और K हमारा क्या है बेटा? कांस्टेंट है। सो इट इज क्लियर दैट whatever be the pressure, whatever be the temperature, ratio of pressure and temperature always remains constant. Ratio of pressure and temperature always remains constant. Ratio of pressure and temperature always remains constant. तो आपके जहन में आया होगा
ग्राफ कैसे होगा? ना ग्राफ ऐसे होगा बेटा, ना ग्राफ ऐसे होगा. ग्राफ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. Graph will be parallel to x-axis because you know that whatever be the pressure, whatever be the temperature, ratio of pressure and temperature always remains constant. So constant graph ऐसा होता है बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये जरूरी नहीं कि यहां पर आप टेम्परेचर ले लो बेटा, यहां पर आप प्रेशर भी ले सकते हो बेटा. आप कितना भी टेम्परेचर को बढ़ाओ, अरे प्रेशर भी बढ़ेगा ना, मगर रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप कितना भी प्रेशर को बढ़ाओ, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मगर रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा. ये था हमारा एक और ग्राफ बिटवीन P by T वर्सेस T और P by T वर्सेस P. ग्राफ नंबर 4. Now we have graph number 5. Now we have graph number 5. ध्यान से सुनना. Now we have graph number 5. देखो बेटा ग्राफ नंबर 5. हो सकता है ये ग्राफ आपको मैंने दिखाया होगा, मैं फिर से रिवाइज करूं. चलो बेटा, यहां मैंने लिखा log P, अरे यहां मैंने लिखा log T. Now you have to plot the graph between log P versus log T. अरे ऐसी इक्वेशन मैंने आपको दिखाई है. अगर ना दिखाई है, देखो बेटा इसको कैसे करेंगे बेटा. बोलो हमारी बेसिक इक्वेशन क्या है? हमारी वी हैव बेसिक इक्वेशन P इज इक्वल टू KT. अब आपको चाहिए log P. अरे y पे आपका log P है ना, और x पे आपका log T है, तो यहां P है, इसको log बनाना है, यहां से भी log, तो मैं लिखूं log P इज इक्वल टू log KT. क्लियर? शाबाश. दोनों साइड से मैंने log लगा दिया. अब क्या करना है बेटा, यहां पर मैं लिखूं बेटा log P. क्या ये फॉर्मूला है? log m इंटू n है ना, दैट इज इक्वल log m प्लस log n. तो यहां पर मैं लिखूं बेटा log k प्लस log t. इज दैट क्लियर? शाबाश. देखो इसको मैं लिखूंगा log P इज इक्वल टू, पहले मैं लिखूंगा log t, ठीक है, प्लस log k. देखो बेटा अब तो आराम से आपको ग्राफ आएगा. बोलो y पे क्या है? log p. तो log p क्या है? y. शाबाश. x पे क्या है? log t. तो log t क्या है? x. और x से पहले क्या होता है? m. याद है ना. और ये क्या है आपका बेटा? अरे ये तो c है ना, दिस इज योर c. चलिए बेटा देखिए ग्राफ क्या है, इक्वेशन क्या है. y इज इक्वल टू mx प्लस c. क्लियर? इट इज क्लियर दैट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. इट इज क्लियर दैट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज आपकी इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन है. अब सवाल है कौन सा स्लोप? पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप? अरे m की तरफ देखिए, अरे m तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप. क्या इंटरसेप्ट है? हाँ इंटरसेप्ट है. किसके बराबर? log के. जब इंटरसेप्ट होता है, आपको पता है बेटा ग्राफ डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन, पता है ना. तो log P और log T के बीच ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन which does not pass through the origin with positive slope. तो graph will be like this. Clear? यहां से यहां तक जो डिस्टेंस क्या है बेटा, यहां से यहां तक क्या है? इंटरसेप्ट. वेरी गुड. और ये इंटरसेप्ट किसके बराबर है बेटा? ये इंटरसेप्ट किसके बराबर है बच्चों? log k के बराबर. इज दैट क्लियर? और मुझे बताओ यहां इस ग्राफ का स्लोप जो है बेटा, कोई मुझे बोल सकता है स्लोप किसके बराबर है? m स्लोप है, वो तो 1 के बराबर है ना. स्लोप इज इक्वल टू प्लस 1. आपको पता है स्लोप tan थीटा के बराबर होता है. tan थीटा इज इक्वल टू 1, सो वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. इज दैट क्लियर? समझ आया ना बात? और थीटा यहां पर कहां है पता है ना? थीटा इज द एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. थीटा आपका होगा यहां पर. समझ आया ना बात? और ये थीटा यहां पर है लेस देन 90, है ना, 45. जब थीटा लेस देन 90 होता है, स्लोप पॉजिटिव होता है. आपको मैंने पीछे सारा ही सिखाया है. तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन log P एंड log T. ये तो मैंने पहले आपको सिखाया था, ठीक है ना. तो log P वर्सेस log T, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन बट नॉट passing through the origin. Why not passing through the origin? Because you have intercept, that is log k. Clear? Shabash. And
यहां पर स्लोप हमारा क्या है बेटा, अरे 1 है ना, देखो m तो 1 है, जब स्लोप 1 है, स्लोप किसके बराबर, tan थीटा, और थीटा 45 होगा। क्यों 45 होगा, क्योंकि जब tan 45 लिखेंगे हम वही तो 1 होता है ना। समझ आए ना बात। ये था एक और ग्राफ, ग्राफ नंबर 5th। नाउ वी हैव ग्राफ नंबर 6th, 7th और 8th। बेटा आपको मैंने बेसिक सिखाया है कर्व्स का, यह आपका होमवर्क है। आज शाम तक 9 बजे तक ये मेरे नंबर पे पहुंचना चाहिए बेटा। 3 ग्राफ्स मैं आपको यहां पे दूंगा, दिस इज होमवर्क। चार्ल्स लॉ में आपको मैंने सारा सिखाया है, बहुत सारे बच्चों ने इन ग्राफ्स को किया है, अरे बहुत सारे बच्चों ने इन ग्राफ्स को सेंड किया है बेटा, मगर आज मैंने फिर भी इसको रिवाइज किया। हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो या किसी ने कोई क्लास अटेंड ना की हो। नाउ होमवर्क है, यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन। मैं देखूंगा, मैं देखना चाहूंगा बेटा किस किस को ये ग्राफ आएगा। यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ नंबर 6th, ये आपको खुद बनाना है। ध्यान से सुनना, यहां मैंने लिखा PT, यहां मैंने लिखा t², एक ये, दूसरा मैंने यहां पे लिखा बेटा PT, यहां पे मैंने लिखा t, तीसरा मैंने यहां पे लिखा बेटा PT, और यहां पे मैंने लिखा √t। याद रखना, और कुछ नहीं करना है, यू हैव टू यूज द बेसिक इक्वेशन P = KT। सारा मैंने आपको दिखाया, क्लियर। अब हम इंशाल्लाह कल इन तीनों लॉज पे करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स, ठीक है बेटा। बेस्ट ऑफ लक।